السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ مجھے راستہ دکھا۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہو لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ پاک کے شکر گزار ہوں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو ادا نہ کرے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندر کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ پاک کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سب جہانوں پر قادر اللہ پاک سے تعلق بناؤ۔ گناہ کے دوران موت نہ آئے اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی ساکھ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے باز کر دیتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ صبر کا دامن مت چھوڑیں، وقت وہ حالات بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو تو یقین کر لیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور سن رہا ہے آپ کو۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اکثر دعا کے لیے دیکھو کس قدر رب نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ افسوس یہ وہ مشورہ ہے جہاں لوگ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت، نیک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بس رب کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ بات جب نہ ہو لوگوں کی مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائش مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتی ہوں جو مجھے اللہ پاک کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے زیادہ پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے میں مجھے میرا اللہ پاک مل جائے۔ اور اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے یہ زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ 3 چیزیں صبر میں سے ہیں، اپنی مصیبت کسی کو نہ بتاؤ، اپنا درد کسی سے نہ کہو اور خود اپنی پارسا بیان نہ کرو۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونق زہر لگتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا باوضع کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا جبت اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رب ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔
किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले यह सोच लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में हुकूक उल इबादत की माफी नहीं। अगर किसी पर भरोसा करो तो आखिरत तक करो, नतीजा चाहे कुछ भी निकले, आखिर में आपको एक सच्चा दोस्त मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। दुनिया की हर चीज से फायदा उठाएं, पर कभी किसी की कमजोरी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपनी ही जंग से बर्बाद होता है। उसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें रब नजर आएगा। इस बात को आपने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह पाक की इजाजत ना हो। आपको कोई मुसीबत दे नहीं सकता अगर अल्लाह पाक उसको रोक ले। जिन रिश्तों में एहसास की कदर ना हो, वहाँ पर अपने जज्बात कुर्बान नहीं करने चाहिए। कभी कभी हम जहनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमें बुलंद दर्जे पर रखता है। वबर की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले से बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाएंगे। एहसास जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर यह मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो मिला नहीं। अगर इंसान अपने रब पर रखता है तो अल्लाह पाक उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देता। बेशक वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जाहिल की एक खुसूसियत यह भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। तूफान में कश्तियां और गुरूर में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। रहम, एहसास, लूस, सादगी, यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। तौबा के आंसू का कमाल है कि यह गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। यह तलक हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो। आदमी उस परिंदे की तरह है जो इंसान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। अपने कुछ लम्हों के उरूज पर गुरूर न करो, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से तन्हाई में एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा बेहतर है। जब दिल को लगती है तभी दिल अल्लाह पाक से लगता है। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रंगो, लेकिन आगे बढ़ना न छोड़ो। जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि कोशिश की जरूरत होती है। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है, जबकि सीरत पहचान करवाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, फुर्सत या जरूरत से नहीं। खामोशी उसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी कैसी। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से, मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से, लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। 4 खतरनाक तल ज्यादा सोचने से खुशियों का तल होता है।
खौफ की वजह से हौसले कत्ल होता है, झूठ बोलने से एतमाद कत्ल होता है, शक करने से रिश्तों कत्ल होता है। अहले जन्नत की 4 निशानियां: मुस्कुराता चेहरा, नरम जुबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अखलाक एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। खूबसूरती की कमी को अखलाक से पूरा किया जा सकता है, मगर अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का अखलाक बोलता है। और किसी की जुबान इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। अखलाक का अच्छा होना रब से मोहब्बत की दलील है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और ईमान है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अच्छे अखलाक से राजी कर लो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशी के तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। जब कोई न समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। खामोशियां उसी वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप होते हैं। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब लाफा ज्यादा हो, आवाज बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। नसीब से कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। नामुमकिन है कि अल्लाह पाक ने जो आपके लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमैन हो जाएं। अपने दिल से हसद नफरत को बाहर निकाल फेंकें। साफ दिल और साफ नीयत के साथ जीना सीखें। खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। जिस चीज की जितनी चाहत रखोगे उतना ही थकती है। फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते, रुक जाएं, ठहर जाएं, इंतजार करें। जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़कर भी आपको मिल जाना है, और जो नसीब में नहीं है उसके पीछे जितना मर्जी तुम भाग लो, सिवाय थकन के कुछ हाथ नहीं लगता। नसीब बेशक अल्लाह पाक के हाथ में, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआ ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे बुलंद जब आजमाइश की आजान होती है। बड़ा मुश्किल है जब्त का वजू संभालना, बड़ी लंबी सब्र की नमाज होती है। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। अल्लाह पाक ने कभी यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। अल्लाह पाक ने कहा, बेशक मैं उनके साथ हूँ जिनमें सब्र हो। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आ जाता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। मोहब्बत की पहचान मुकद्दर से नहीं मियार से होती है। मोहब्बत थोड़ी मिले पर सच्ची मिले तो जिंदगी संवर जाती है। मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, मगर मोहब्बत निभाना इंसान के बस में होता है। मोहब्बत करने वाले की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो अपनी जान से बढ़कर आपकी इज्जत की हिफाजत करता है। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। काबिल रस्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती से बख्शे और तुम्हें नेक बना दे। नसीब से जो मिल जाए उसे
मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो इबादत है और इबादत करनी पड़ती है। जिंदगी में हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। परेशानी तज़किरा करने से रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। कोशिश करने से भी कुछ हासिल ना हो तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दीजिए। अल्लाह पाक बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उन लोगों को वजाहत देकर अपना वक्त और सुकून बर्बाद ना करें जो हमेशा आपको गलत समझने और साबित करने के लिए मसरूफ रहते हैं। हर सय के सवाब का अंदाज है, मगर सब्र के सवाब का अंदाज नहीं। यह दुनिया मकाफत अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजीज पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुकाकर रखता है और बेशक अल्लाह पाक को पसंद है। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमजदा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तबील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को पसंद है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। कमतरीन इल्म है वो जो जुबान पर रहे और बुलंदतरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। किसी का दिल तोड़कर माफी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह पाक देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मखली दिल से निकली हो। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें रब नजर आएगा। आपकी कामयाबी यह नहीं कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी आसाइश हासिल कर ली, असल कामयाबी यह है कि आपकी बदौलत कितने लोगों को आसाइश मैसर हुई। कुछ चीजें मुकद्दर और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कुल रखने से सब कुछ हो जाता है, जिसका गुमान भी नहीं किया होता। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजूदों की इंतहा कर दूंगा। जब तुम्हारा दिल सुकून में होता है ना, तो तुम उस शिद्दत और तड़प से दुआ नहीं कर पाते, मगर जब कुछ भी तुम्हारे पास भी नहीं होता, तुम्हारे बस में नहीं होता, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अल्लाह पाक तुम्हें कोई दुख देकर उदास करके दुआओं की तरफ ले आता है, ताकि तुम अल्लाह पाक से दिल भर के दुआ कर सको, ताकि तुम अल्लाह पाक से शिद्दत से दुआ मांग सको। अल्लाह पाक जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों जरूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह पाक की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना हैं। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा, उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। रूठी हुई खामोशी से बोली हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और आप हर किसी को नहीं समझा सकते। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। अल्लाह पाक की मसलियत समझने वालों के दिल कभी जिद्दी नहीं हुआ करते।
हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी सबर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से एहतबक रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। दिलों में फर्क पड़ जाए तो याद रखना, तमाम दलीलें, मन्नतें और फलसफे बेकार हो जाते हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हो तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाखदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना ही अच्छा हो अपना ही सोचता है। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिंदगी के अक्सर मकामात ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही क्यों, और बेशक यह फितरी तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान, मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। घबराए नहीं, मेरे और आपके मामला जिसके हैं वो बहुत गफूर रहीम है, वो सब बेहतर करेगा। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा जाए, फुर्सत या जरूरत से नहीं। इंसान की फितरत है वो किसी भी चीज की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। अल्लाह पाक पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना। अखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, एहतराम और खुलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है रब, पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसान का होना भी जरूरी है। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। इंसान सख्तियां बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तलखतानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह पाक के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। अखलाक भी रिज्क की तरह हैं, उसमें से भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और कोई बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह पाक ऐसी सोच अता करे। कुछ तो बेहतरीन लिखा है अल्लाह पाक ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो है जो एक बार आंसू बहाने पर दिल मुतमैन सा हो जाता है। अगर जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह पाक कभी भी रोशनी नहीं देता, सिर्फ करम की चादर से ढांप लिया जाता है। अल्लाह पाक का रहम और करम सदा आपके साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों का जवाल नहीं। ईमान की नेमत के बाद इज्जत, तंदुरुस्ती और रिज्क से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह पाक जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इज्जत, सेहत और रिज्क में वसीयत और बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरे दिल में हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। जो मुसीबत अल्लाह पाक से दूर कर दे वो सजा है, और जो करीब कर दे वो आजमाइश है। सारे दुख तीन अल्फाज पर आकर खत्म हो जाते हैं, अल्लाह पाक है ना। अल्लाह पाक आखिरी उम्मीद नहीं, बाहिस सहारा। वो खफा भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह पाक की तो नाराजगी भी उतनी प्यारी होती है। अल्लाह पाक मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रजा के अलावा कोई चाहत ना रहे। दर्द में जब भी खुद को पाती हूँ, सबसे करीब अल्लाह पाक को पाती हूँ। तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी वो तुमको नहीं भूलता। अल्लाह पाक का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है और
ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ دے میرے مولا، اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے، اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی، ہر لذت کی انتہا جاری ہے سوائے ذکر اللہ پاک کے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھتے جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم وہ کریم ذات ہے۔ اللہ پاک کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ پاک ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پاک پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اللہ پاک مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے تیری طرف لے جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ جب تم جان جاؤ گے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پاک مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والا، اے میرے اللہ پاک، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ پاک سے رجوع ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ پاک کی مصلیت کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو تم کو اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی مصلیت سمجھنے والوں کے دل کبھی جدی نہیں ہوا کرتے۔ ہر بات میں اللہ پاک کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ پاک کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بے چین ہی رہیں گے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلیت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کر، اللہ پاک ہے نا، آپ اس سے باتیں کریں، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا۔ یا اللہ پاک، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور جب اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ پاک سخاوت والا، رزق عزیز والی، عبادت بندگی والی، زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہر کام کرتے وقت اللہ پاک کو اپنے قریب سمجھو، گناہوں کی عادت چھڑا۔ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ میرے مولا، جو تجھ کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا۔ میرے مولا، جس وقت بھی اللہ پاک کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ پاک صرف میرا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ پاک کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ پاک کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے سر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پر ہیں۔ وہی تو میرا اللہ پاک ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا راہ بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اللہ پاک تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ میرا اللہ پاک دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو نہیں جانتی سخیرہ ہے یا کبیرہ، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ پاک کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ پاک کی آپ پر رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ عام مکث رہے ایک کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ پاک دے گا۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ پاک کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی میں بسر ہو۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمہ قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائے استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پر سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ پاک دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، یا اللہ پاک مجھے اتنا بدل دے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ پاک کی ادائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ طلب کرنا بندے کا کام ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تن سوال، دل دکھانے والے توس۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالی کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہر خوبصورتی، بناوٹ، رنگ، روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر روا دبا ہے، دن بہ دن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کرتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں مقبول اور قبولیت کے رابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مربع کو حج کا رکن بنا دیا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجز سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے۔ دکھاوے کے بغیر وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کہ اللہ پاک اپنے بندے کو کافی نہیں؟ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیم
अल्लाह पाक पर यकीन अंधेरों में भी रोशनी करता है। बात सिर्फ एहसास की है, किसको 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग वाजी हों, आपको गलत समझने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कसी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिद की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। 7 समंदर की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुब्तला गम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा। हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर होंठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वो जानता है। उससे कहा जाए वो सुनने का मुंतजर रहता है। हर मंजर बदल देगा क्योंकि वो आपका रब है और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो खुशबू से मतर कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने को कहा गया है और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपने तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को जाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक ना करो कि अल्लाह पाक क्या कर सकता है। अल्लाह पाक पलक झपकने से पहले ही चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूर यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार से एहतियाब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखो और सब्र का दामन थामे रखो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ रब के खौफ से। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ कर देना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते यह दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह पाक ही है जिसको हम जवाबदेह होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करिए। बस अल्लाह पाक से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह पाक किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे कौल वो अमल से। अल्लाह पाक की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्कुल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है अल्लाह पाक की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह पाक से सरगोशियां करती है, जिसके अंदर सारे एहसासात बयां होते हैं जो अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबस होती है। यह जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, इनमें अल्लाह पाक की मसलियत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएंगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह पाक तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब अल्लाह पाक हमें किसी का असली रंग दिखाता है और हम बार बार हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है। कबूलियत का पहला कदम कामिल यकीन है। अपने इरादों में मखली रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। अल्लाह पाक ने जो कुछ तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तुम उस पर राजी रहे गोया तो तुम सबसे मालदार शख्स हो गए। किसी की भी जिंदगी आसान नहीं, जिंदगी को आसान बनाया जाता है।
جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی فرقہ ہوگا۔ اسلام نے عورت کو خیر نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ